जय हिंद दोस्तों, लॉ विद गुरप्रीत के इस प्योरली एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म पर बीएनएसएस स्पेशल सीरीज लेक्चर नंबर 15 में आप सबका स्वागत है। आइए आगे बढ़ाते हैं सीरीज को और नजर डालते हैं सेक्शन नंबर 96 विच सेज व्हेन सच सर्च वारंट में बी इश्यूड। तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकता है। सेक्शन 96 subsection 1 says where clause A says any court has reason to believe that a person to whom a summons or order under section 94 or a requisition under subsection 1 of section 95 has been or might be addressed will not or would not produce the document or thing as required by such summons or requisition, or clause B says such document or thing is not known to the court to be in the possession of any person, or clause C, the court considers that the purposes of an inquiry, trial or other proceedings under this Sanhita will be served by a general search or inspection. It may issue a search warrant and the person to whom such warrant is directed may search or inspect in accordance therewith and the provisions hereinafter contained. सेक्शन 96 की सबसेक्शन 1 में कहा गया है कि जहां आगे क्लॉजेस हैं 3, इसमें बताया गया है एक क्लॉज में जहां किसी अदालत को यह विश्वास हो जाए कि जिस व्यक्ति को धारा 94 के तहत सम्मन या आदेश या धारा 95 की उपधारा 1 के तहत कोई मांग भेजी गई है या भेजी जा सकती है, वह व्यक्ति उस सम्मन या मांग में मांगे गए दस्तावेज या चीज को पेश नहीं करेगा या हो सकता है कि पेश ना करे। या क्लॉज बी में बताया गया है अगर अदालत को यह ना पता हो कि वह दस्तावेज या चीज किसी के कब्जे में है या नहीं। या क्लॉज सी में बताया गया है जहां अगर अदालत ये मानती है कि इस संहिता के तहत किसी जांच, सुनवाई या अन्य कार्रवाई के मकसद को पूरा करने के लिए साधारण तलाशी या निरीक्षण से काम हो जाएगा, तो अदालत तलाशी वारंट जारी कर सकती है और जिस व्यक्ति को यह वारंट निर्देशित किया जाएगा वह वारंट के अनुसार तलाशी या निरीक्षण कर सकता है, जैसा कि इसके बाद की धाराओं में बताया गया है। Next is subsection 2. The court may, if it thinks fit, specify in the warrant the particular place or part thereof to which only the search or inspection shall extend, and the person charged with the execution of such warrant shall then search or inspect only the place or part so specified. Subsection 2 में बताया गया है अगर अदालत ठीक समझे तो वह वारंट में खास तौर पर उस जगह या उसके किसी हिस्से के बारे में बता सकती है जहां तलाशी या निरीक्षण किया जाएगा, और वह व्यक्ति जिसे उस वारंट की तामील करना हो वह सिर्फ उसी जगह या हिस्से की तलाशी लेगा या निरीक्षण करेगा जो कि वारंट में बताया गया है। Next is subsection 3. Nothing contained in this section shall authorize any magistrate other than a district magistrate or chief judicial magistrate to grant a warrant to search for a document, parcel or other thing in the custody of the postal authority. Subsection 3 में बताया गया है इस धारा के तहत कोई भी बात डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी जिला मैजिस्ट्रेट या चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट यानी मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट को छोड़कर किसी अन्य मैजिस्ट्रेट को डाक विभाग की अभिरक्षा में किसी दस्तावेज, पार्सल या अन्य चीज की तलाशी के लिए वारंट जारी करने का अधिकार नहीं देगी। Next is section 97. Search of place suspected to contain stolen property, forged document, etc. उस जगह की तलाशी जिसमें चुराई हुई संपत्ति, जाली दस्तावेज वगैरह होने का संदेह हो या शक हो। Section 97 subsection 1 says if a district magistrate, subdivisional magistrate or magistrate of the first class
upon information and after such inquiry as he thinks necessary, has reason to believe that any place is used for the deposit or sale of a stolen property or for the deposit, sale or production of any objectionable article to which this section applies, or that any such objectionable article is deposited in any place, he may by warrant authorize any police officer above the rank of a constable A to enter with such assistance as may be required to enter such place, B to search the same in the manner specified in the warrant, then C to take possession of any property or article therein found which he reasonably suspects to be stolen property or objectionable article to which this section applies, D to convey such property or article before a magistrate or to guard the same on the spot until the offender is taken before a magistrate or otherwise to dispose of it in some place of safety, E to take into custody and carry before a magistrate every person found in such place who appears to have been privy to the deposit, sale or production of any such property or article, knowing or having reasonable cause to suspect it to be stolen property or, as the case may be, objectionable article to which this section applies. सेक्शन 97 की सबसेक्शन 1 में बताया गया है, अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट या मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को जानकारी मिलने पर और ऐसी जांच जिसे वह जरूरी समझे करने के बाद ये यकीन करने का कारण हो कि कोई जगह चोरी की संपत्ति के जमा करने या बिक्री के लिए या किसी ऐसे आपत्तिजनक सामान के जमा, बिक्री या उत्पादन के लिए इस्तेमाल की जा रही है या कोई ऐसी आपत्तिजनक चीज किसी स्थान में या जगह में जमा है, तो वह वारंट के जरिए कांस्टेबल के ओहदे से ऊपर के किसी पुलिस अधिकारी को यह अधिकार दे सकता है कि वह ए उस जगह में ऐसी मदद के साथ दाखिल हो जो जरूरी हो, बी वारंट में निर्दिष्ट तरीके से उस जगह की तलाशी ले, देन सी वहां पाई गई किसी भी संपत्ति या चीज को जिसके चुराई हुई संपत्ति या ऐसी आपत्तिजनक चीज जिसको ये धारा लागू होती है होने का उचित संदेह हो कब्जे में ले, डी ऐसी संपत्ति या चीज को मैजिस्ट्रेट के पास ले जाए या अपराधी को मैजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने तक उसे उसी स्थान पर सुरक्षित रखे या अन्यथा उसे किसी सुरक्षित स्थान पे में रखे, देन ई उस स्थान में पाए जाने वाले हर व्यक्ति को गिरफ्तार करे और मैजिस्ट्रेट के सामने ले जाए जो उस संपत्ति या चीज के जमा, बिक्री या उत्पादन में शामिल लगता है और जिसे चोरी की संपत्ति या इस धारा के तहत आने वाले आपत्तिजनक सामान के बारे में जानकारी थी या संदेह था। नेक्स्ट इज सबसेक्शन 2. The objectionable article to which this section applies are A. Counterfeit coin, B. Pieces of metal made in contravention of the Coinage Act 2011 or brought into India in contravention of any notification for the time being in force issued under Section 11 of the Customs Act 1962, C. Counterfeit currency note, counterfeit stamps, D. Forged documents, E. False seals, F. Obscene objects referred to in Section 294 of Bharatiya Nagarik Sanhita 2023, G. Instruments or materials used for the production of any of the articles mentioned in clauses A to F. सबसेक्शन 2 में बताया गया है कि इस धारा के तहत आने वाले आपत्तिजनक सामान में शामिल हैं ए. जाली सिक्के, बी.
धातु के ऐसे टुकड़े जो कॉइनेज एक्ट 2011 का उल्लंघन करते हुए बनाए गए हैं या जो भारत में कस्टम्स एक्ट 1962 की धारा 11 के तहत जारी किसी अधिसूचना का उल्लंघन करते हुए लाए गए हैं। सी, जाली करेंसी नोट या जाली स्टाम्प। डी, जाली दस्तावेज। ई, नकली मोहरे। एफ, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 294 में बताई गई अश्लील चीजें। और जी में बताया गया है उन चीजों के उत्पादन के लिए इस्तेमाल होने वाले उपकरण या सामग्री जो उपबंध ए से लेके एफ तक में बताई गई हैं। नेक्स्ट इज सेक्शन 100, सर्च फॉर पर्सन्स wrongfully confined, गलत तरीके से कैद किए गए व्यक्तियों के लिए तलाश। Section 100 says, if any district magistrate, sub-divisional magistrate or magistrate of the first class has reason to believe that any person is confined under such circumstances that the confinement amounts to an offense, he may issue a search warrant and the person to whom such warrant is directed may search for the person so confined, and such search shall be made in accordance therewith, and the person, if found, shall be immediately taken before a magistrate who shall make such order as in the circumstances of the case seems proper. सेक्शन 100 में बताया गया है कि अगर किसी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी व्यक्ति को ऐसे हालात में कैद किया गया है कि यह कैद एक अपराध है, तो वह तलाशी वारंट जारी कर सकता है। जिस व्यक्ति को ऐसा वारंट निर्देशित किया गया है वह उस व्यक्ति की तलाश कर सकता है और यह तलाशी वारंट के अनुसार की जाएगी। अगर वह व्यक्ति पाया जाता है तो उसे तुरंत एक मैजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाएगा जो ऐसा आदेश करेगा जैसा ऐसे मामलों में या ऐसे हालात में उचित प्रतीत हो। नेक्स्ट इज सेक्शन 101, पावर टू कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ एब्डक्टेड फीमेल्स, अपहरण की गई महिलाओं को वापस लाने की शक्ति। सेक्शन 101 says, upon complaint made on oath of the abduction or unlawful detention of a woman or a female child for any unlawful purpose, a district magistrate, sub-divisional magistrate or magistrate of the first class may make an order for the immediate restoration of such woman to her liberty or of such female child to her parent, guardian or other person having the lawful charge of such child, and may compel compliance with such order using such force as may be necessary. सेक्शन 101 में बताया गया है अगर किसी महिला या लड़की के अपहरण का या अवैध तरीके से रोकने की शिकायत शपथ पर यानी ओथ पर की जाती है तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट ये आदेश दे सकते हैं कि उस महिला को तुरंत आजाद किया जाए या उस लड़की को उसके माता पिता, देखभाल करने वाले या किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसकी वैध तरीके से देखरेख करता है तुरंत वापस किया जाए। और इस आदेश का पालन करने के लिए जरूरत के अनुसार बल का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट इज सेक्शन 102, डायरेक्शन एसेट्रा ऑफ सच वारंट्स, तलाशी वारंटों का निर्देशन वगैरह। सेक्शन 102 says the provisions of section 32, 72, 74, 76, 79, 80 and 81 shall so far as may be applied to all such warrants issued under section 96, section 97, section 98 or section 100। सेक्शन 102 में बताया गया है धारा 32, धारा 72, धारा 74, धारा
76, धारा 79, धारा 80 और धारा 81 के प्रावधान जहां तक हो सके उन सब तलाशी वारंटों को लागू होंगे जो धारा 96, धारा 97, धारा 98 या धारा 100 के तहत जारी किए जाते हैं। इसी के साथ आज का ये लेक्चर यहीं संपन्न होता है। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक जय हिंद।